मैकेनिक्स का एक ही प्लेटफॉर्म। गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री है, दैट इज 3 times बिगर देन द ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मूवीज इंडस्ट्री। इसमें हमारे लिए जो सबसे एक खुशाइन बात है वो ये है कि जो अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस इंडस्ट्री को रिकग्नाइज कर रहे हैं, और उसमें जो अभी मोस्ट रिसेंट स्टेप आया है ज़ेबिस्ट की तरफ से, जिसमें वो गेम डिज़ाइन स्पेशलिटी लॉन्च करना चाह रहे हैं। इसमें बहैसियत एक इंडस्ट्री का हिस्सा होने के मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशाइन भी है। इससे हमें प्रोफेशनली ट्रेन्ड और वेल ग्रूम्ड टैलेंट भी मिलेगा। Zebist Media Department will show you the way. Zebist Game Design Specialization is the way forward. Zebist Islamabad Media Department is here for you. Zebist का मीडिया डिपार्टमेंट और गेम डिजाइन स्पेशलाइजेशन दोनों ही नेक्स्ट लेवल है। Video gaming is one of the most interesting form of digital media because not only is it immersive but it's also interactive. हमें इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करवाना चाहिए, और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस चीज़ पे फोकस करते हैं, लोगों की गेम साइकोलॉजी बेहतर करते हैं, लोगों को एक ओरिजिनलिटी एंड क्रिएटिविटी की तरफ फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्लोन्स एंड रिपीटिंग दैट प्रोसेस, पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो फिर क्यों ना इमेजिनेशन का अलग लेवल खुला। गेम डिजाइन स्पेशलाइजेशन एट ज़ेबिस्ट। यह मैदान सिर्फ खेलने का नहीं, बनाने का भी है। गेम का असली मजा यहाँ है। अच्छी चीज़ है कि ज़ेबिस्ट जैसी यूनिवर्सिटीज़ गेम डिज़ाइन की स्पेशलाइजेशन लॉन्च कर रहे हैं, और इससे स्टूडेंट्स को भी बहुत फ़ायदा है और पाकिस्तान की गेम इंडस्ट्री को भी बहुत फ़ायदा है। कम एंड एक्सप्लोर दी पॉसिबिलिटीज, जहां सपने बनते हैं हकीकत। Join Zebist and unleash your inner designer. Zebist Islamabad is calling you. Zebist Islamabad is calling you. Assalamu alaikum. My name is Adia Miheen and you're watching HEC E-Kacheri. We're coming to you live from Zebist University, Islamabad's Media Sciences Department's TV studio. And you're watching us live on edultv.hec.gov.pk. आज के हमारे इस एपिसोड में we will explore the transformative power of digital learning in Pakistan. We're excited to discuss one of the most impactful initiatives in higher education, Digital Learning and Skills Enrichment Initiative, DLSEI Phase 3, launched by the Higher Education Commission of Pakistan in collaboration with Coursera. This initiative is providing free access to world-class education for students and faculty across Pakistan. Joining us today is Hamza Khan. Assalamu alaikum, sir. Sir, sabse pehle, we would like to start with you. Can you tell us a little bit about yourself? First of all, thank you very much for having me today. My name is Hamza Khan. I'm a project manager of DLSEI, Digital Learning and Skills Enrichment Initiative.
This is a project of Higher Education Commission of Pakistan in collaboration with Coursera. Since 2021, I'm spearheading this project, and alhamdulillah, we have upskilled 100,000 plus youth of Pakistan in the last 5 years. And till now, we have executed 6 programs of digital learning and skills enrichment initiative nationwide in 250 plus universities of Pakistan. That is amazing, mashallah. So when it comes to DLSEI in digital learning, can you share a little bit of the background of this program and its core objectives? So नाम से ही जाहिर है डिजिटल लर्निंग एंड स्किल्स इनरिचमेंट इनिशिएटिव स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत है। वही स्किल्स बेस्ड एजुकेशन DLSEI प्रोवाइड करता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है इन कोलैबोरेशन विद कोर्सेरा। The first phase of this program was initiated back in 2018, but that was on a micro level, that was a pilot project, जिसमें हमने सिर्फ 8,000 बच्चों को अपस्किल किया था। But after COVID-19, पोस्ट कोविड के बाद एक बूम बना स्किल्स का, क्योंकि आपको स्किल्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है आजकल की। डिजिटलाइजेशन जो जिद्दत की तरफ हमारी दुनिया एक ग्लोबली दुनिया जा रही है, लोग जा रहे हैं, तो उस स्किल्स गैप को फिल करने के लिए 2021 में भी इनिशिएटेड फेज 2 ऑफ दिस DLSEI प्रोजेक्ट, जिसमें भी अपस्किल मोर देन 50,000 यूथ ऑफ पाकिस्तान इन 2 to 3 years. Then in 2024 we initiated phase 3 year 1 of DLSEI program, जिसमें we upskill over 60,000 youth of Pakistan. और अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट, दिस इज year 2 of DLSEI phase 3, जिसमें we aim to upskill more 60,000 youth of Pakistan in the next 1 year inshallah. That is amazing. So when it comes to HEC's vision, what is the broader vision of HEC when it comes to digital education? So देखिए, in these days, in nowadays, traditional degrees are not enough. Along with the traditional degrees, skills-based education is very important. तो HEC का एम यह है कि एजुकेशन को वो मॉडर्नाइज करें। वो लोग जो रूरल एरियाज में हैं या अर्बन एरियाज में हैं, उनके पास एजुकेशन के एक्सेस नहीं है, उनको घर बैठे लर्न एनी टाइम एनीवेयर दे कैन लर्न फ्रॉम द टॉप रैंक ग्लोबल यूनिवर्सिटीज एंड कंट्रीज इन कोलैबोरेशन विद कोर्सेरा, क्योंकि कोर्सेरा ऐसे स्किल्स बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करता है जिनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। वही HEC का एम है कि मॉडर्नाइज किया जाए, कि वो अपने लैपटॉप्स पे, अपने मोबाइल फोन पे वो एजुकेशन हासिल कर सके जो कि दुनिया ग्लोबली आउट ऑफ पाकिस्तान दुनिया हासिल कर रही है। तो आपने क्योंकि स्किल्स डेवलपमेंट की बात की, व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट, तो आप थोड़ा सा इस पर एलैबोरेट करेंगे, व्हाई आर स्किल्स सो इम्पोर्टेंट, सो क्रिटिकल टुडे? या सो स्किल इज लाइक अ करेंसी, और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्किल्स का, और आजकल मेरे ख्याल से हर दूसरे तीसरे इंसान से हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि स्किल्स की बहुत ज़्यादा आजकल अहमियत है। तो स्किल इज लाइक अ करेंसी, इफ यू हैव द स्किल्स यू कैन कम्पीट इन द प्रोफेशनल मार्केट। अगर वो एम्प्लॉयबिलिटी की बात हम करें, अगर वो हम फ्रीलांसिंग की बात करें, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें, स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ऑल्दो एजुकेशनल डिग्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक जॉब के एलिजिबल करने के लिए एजुकेशन डिग्री का होना मस्ट है, लेकिन स्किल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई गिव यू माई एग्जाम्पल, माई ओन पर्सनल एग्जाम्पल। बैक इन 2019 जब मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया, आई अप्लाइड फॉर अ जॉब। एजुकेशन डिग्री मेरे पास इंजीनियरिंग की थी, लेकिन जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया, दे आस्क्ड फॉर सम स्किल्स, ऑटोकैड स्किल्स, जो कि मुझे पता नहीं था। वही उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि वो स्किल्स जो है आजकल, बल्कि नॉट इन ओनली पाकिस्तान, ग्लोबली जो स्किल्स चलते हैं वो एजुकेशनल डिग्रीज कवर नहीं करती। तो वही स्किल्स जो होते हैं, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उस स्किल्स बेस्ड एजुकेशन स्किल्स गैप को फिल करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने DLSEI का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, क्योंकि ये ब्रिज बनाता है इंडस्ट्री के और एकेडमी के दरमियान, एम्प्लॉयबिलिटी के दरमियान। क्योंकि अगर इंसान के पास स्किल्स होते हैं तो वो कभी ज़ाया नहीं जाते। हम अक्सर कहते हैं कि डिग्री ज़ाया नहीं होती, लेकिन मेरा ख्याल है कि डिग्रीज अलॉन्ग विद स्किल्स ये दोनों कभी ज़ाया नहीं जाते। दैट्स व्हाई स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डिजिटल एरा। बिल्कुल आपने सही कहा कि इट क्रिएट्स अ ब्रिज बेसिकली बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में HEC इज कोलैबोरेटेड विद कोर्सेरा। तो जहाँ तक कोर्सेरा की बात है, तो आप इस बारे में थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताएंगे कि व्हाट इज कोर्सेरा? So Coursera is a leading top MOOC provider, massive open online courses. Coursera इनिशिएट हुआ था 2012 में, जब AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, स्किल्स का कोई बूम नहीं था, लेकिन कोविड-19 के बाद बहुत एक बड़ा बूम बना। कोर्सेरा में वो स्किल्स बेस्ड एजुकेशन है जो आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं कि हम बाहर के मुल्कों में जाके हम वो एजुकेशन हासिल करें। कोर्सेरा आपको आपके घर बैठे वही एजुकेशन फ्रॉम गूगल, मेटा, IBM, टॉप कंपनीज, AWS के कोर्सेज से लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, येल, जॉन हॉपकिंस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज होते हैं, वो स्किल्स प्रोवाइड करता है अपने लर्नर्स को। ग्लोबली अगर हम लर्नर्स की बात करें तो 200 मिलियन से ज़्यादा ग्लोबल लर्नर्स हैं ऑफ कोर्सेरा। 20 करोड़ से ज़्यादा हमारे लर्नर्स हैं कोर्सेरा पे। तो कोर्सेरा की जो स्किल्स हैं, स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, वो जो लैक करता है, जो ब्रिज है, उसको फिल करने के लिए कोर्सेरा ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है।
That is amazing. So, लेकिन what makes Coursera like most valuable? Because of the content. देखिए बैक इन 2021 सिर्फ 8,000 कोर्सेज होते थे कोर्सेरा पे, लेकिन आपको पता है 21-22 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बूम आया तो कोर्सेरा ने मोर देन 19,000 कोर्सेज डेवलप किए, बिकॉज AI का जो बूम आया है, जो दौर आया है, वही स्किल्स बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना उनका सबसे बड़ा एक एम था। और दूसरा सबसे वैल्यूबल इस वजह से है कि जो कोर्सेरा के सर्टिफिकेशंस होते हैं, लाइक अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो वो PMI प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ US से एक्रेडिटेड है। दुनिया में हजारों कंपनीज ऐसे हैं, बड़े बड़े कंपनीज जो कोर्सेरा के ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं। US में अगर मैं बात करूं तो देयर आर सेवरल कॉलेजेस जो कि क्रेडिटास में इंटीग्रेट करते हैं कोर्सेरा के कोर्सेज को, और चुन के वही मेटा, IBM, गूगल वो स्किल्स प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल वो होता है। मेटा, गूगल, IBM जो अपने टूल्स, अपने सॉफ्टवेयर्स जो जिद्दत की तरफ वो जा रहे हैं, उन्हीं के लेक्चरर, उन्हीं के प्रोफेसर्स वही कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और वही हम HSC थ्रू DLSA प्लेटफॉर्म वी प्रोवाइड दो स्पेसिफिक कोर्सेज एंड लाइसेंसेस to the youth of Pakistan for free. That is completely, absolutely for free. That is actually a very good opportunity for students. तो अब बात करते हैं कि DLSA phase 3 में कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन who are eligible to apply for this? For the DLSA program, Higher Education Commission की प्रोजेक्ट है, तो not only students बल्कि faculty members, क्योंकि teach the trainers is very important. तो हमारा एम ये है, HEC का एम ये है कि सिर्फ स्टूडेंट्स को हम अपस्किल ना करें, बल्कि अगर हम फैकल्टी को अपस्किल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्टूडेंट्स भी उससे अपस्किल होंगे, क्योंकि उससे मेथोडोलॉजी में इजाफा होगा, उनके कंटेंट में इजाफा होगा, और स्टूडेंट्स के लिए एम्प्लॉयबिलिटी में जब स्टूडेंट एक डिग्री लेके बाहर निकलता है, प्रोफेशनल मार्केट में जाता है, जब वो स्किल्स कोर्सेरा के उनके पास होंगे तो वो उनके बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होंगे। तो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स ऑफ एक्टिव स्टूडेंट्स होने चाहिए। जो ग्रेजुएट्स हैं देयर अनफॉर्चुनेटली नॉट एलिजिबल, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, दे आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। And can you tell us a little bit about Coursera license? Coursera license क्या है? So basically Coursera license is a kind of a subscription. It's a Netflix subscription, you can say it's a buffet system. जब एक सब्सक्रिप्शन आपके पास होती है, एक लर्नर के पास होती है, तो लर्नर कैन इनरोल इन 19,000 प्लस कोर्सेज ऑन Coursera प्लेटफॉर्म। हमें आजकल भी काफी स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स रीच आउट करते हैं सोशल मीडिया पे, दे आस्क व्हाट इज अ Coursera लाइसेंस, और हमें जब ये लाइसेंस मिलेगा तो उस पर क्या होगा, तो उस पर आपको कंप्लीट सब्सक्रिप्शन होगी। जिस तरह नेटफ्लिक्स में जाके आप सीरीज देखते हैं, सीजन देखते हैं, मूवीज देखते हैं, हर एक कैटेगरी के, इसी तरह से Coursera में भी आप आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, social sciences, engineering, project management, digital marketing, you name it, you can learn from Coursera once you have the license of Coursera that HEC is providing. मैंने खुद इस पर मेल किया, and it's amazing जिस तरह से वो आपको opportunities देते हैं. The way we call it buffet system is a very accurate, because it is like a subscription platform जिस पे आपके पास 19,000 courses हैं from which you can get certificates from. लेकिन इन certificates की value क्या है? आप उनकी credibility के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, like certificates. So देखिए मेरे ख्याल में credibility सबसे ज्यादा एक इंसान की तब होती है जब उसके पास स्किल्स होते हैं. जो सर्टिफिकेशंस होते हैं दैट इज जस्ट एन एविडेंस कि हाँ मैंने ये स्किल्स पढ़े हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्किल्स पढ़ना है. लेकिन अगर हम क्रेडिबिलिटी की बात करें तो Coursera में वो टॉप के यूनिवर्सिटीज एंड कंपनीज हैं जो कि आजकल एक हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर फैकल्टी यूज करता है. फेसबुक मेटा हो गया, Amazon ई-कॉमर्स हम यूज करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स हम यूज करते हैं. तो वही स्किल्स, वही Amazon, वही मेटा, वही गूगल आपको वो स्किल्स प्रोवाइड करता है जो वो खुद आजकल के जमाने में इस 21st सेंचुरी में वो यूज कर रहे हैं. और जब हम अगर टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें, लाइक जॉब हॉपकिंस हो गया, मिशिगन हो गया, येल हो गया, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, ये बड़े नाम है. तो इस वजह से जब उन्हीं के प्रोफेसर्स, उन्हीं के लेक्चरर्स आपको कोई लेक्चर दे रहे हैं या ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी. और अगर हम ये बात करें कि 200 मिलियन से ज्यादा हमारे लर्नर्स हैं ग्लोबली, तो इससे मेरे ख्याल से बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकती कि पूरी दुनिया, मोर देन 190 कंट्रीज Coursera को अडॉप्ट कर रही है. एग्जैक्टली, बिल्कुल. और जहाँ तक पाकिस्तानी यूथ की बात आती है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी मेंबर्स, उनके लिए क्या बेनिफिट होगा इस लाइसेंस का? देखिए अगर मैं ये यूथ की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स
यूनिवर्सिटी लेवल पे, बैचलर्स लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे उनको आइडिया नहीं होता कि प्रोफेशनल मार्केट में आजकल क्या चल रहा है, लेकिन जब वो प्रोफेशनल मार्केट में स्टार्टिंग करते हैं तब उनको आइडिया होता है कि वेयर आर स्किल्स, मेरे पास तो वो स्किल्स है ही नहीं। तो इस वजह से ये इतने इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है फॉर स्टूडेंट्स। अगर पहले मैं बात करूं कि अगर वो स्किल्स सीखेंगे, आजकल के ज़माने में एम्प्लॉयर को कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि मेरे एम्प्लॉय में स्किल्स हो। अगर उसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं तो ही और शी कैन वर्क इन माई कंपनी। इसी तरह अगर एम्प्लॉयबिलिटी के अलावा एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, छोटे से छोटे कोई स्टार्टअप आप ओपन करना चाहिए, उसमें स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होते तो आप कोई बिजनेस नहीं चला सकते। फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें, फ्रीलांसिंग में आप नहीं कम्पीट कर सकते, नहीं आप आगे बढ़ सकते अगर आपके पास स्किल्स नहीं हो। तो ये इनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए हमारा एक बहुत एक बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट के वही स्किल्स आपको वो प्रोवाइड किए जाते हैं जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। अगर हम फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी हमारे सिविल यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान, दे रीच्ड आउट आफ्टर आवर प्रीवियस प्रोग्राम कि उन्होंने अपना पूरा सिलेबस चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ कोर्सेरा। उन्होंने कोर्सेरा का कंटेंट अपने मेथोडोलॉजी में, अपने कोर्स कंटेंट में उसको इंटीग्रेट किया और वही उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। तो फैकल्टी मेंबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल आपको पता है कि UGC ने अलाउ किया कि आप आर्टिफिशियल, बल्कि मैंडेटरी क्या है कि AI के कोर्सेज आपने पढ़ने हैं। तो AI के कोर्सेज पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए फैकल्टी मेंबर्स को ये हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्किल्स जो होते हैं, जो हम स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, वो स्पेसिफिक तो एक फील्ड नहीं है। अगर या हम IT की बात करें, कंप्यूटर साइंस की, नो, अगर वो मेडिकल का है, अगर वो इंजीनियरिंग का है, सोशल साइंसेस का है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का है, यू नेम इट, हर एक फील्ड, हर एक डोमेन में आजकल स्किल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोर्सेरा हर एक उस फील्ड को टच करता है बिकॉज ऑफ द कंटेंट, द कोर्स कंटेंट दे हैव। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग फील्ड्स के लोग भी डिफरेंट स्किल्स सीख सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट है, आपकी बिजनेस स्किल्स, जो चीज़ें आपको एडवांस भी आपको सीखने का दिल चाह रहा है, लाइक दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। तो ये तो हमें पता चल गया कि पाकिस्तानी यूथ और फैकल्टी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए दिस इज एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी। तो अब स्टूडेंट्स पूछना चाहेंगे कि अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने का तरीका इज वेरी straightforward. All they have to do is to go to the e-services portal, e-services.ugc.gov.pk पे वो जाएंगे। If they already have an account, just log in। अगर नहीं है तो साइन अप करें, आप लॉग इन करें। ई कोर्सेज का वहाँ पे एक सेक्शन होता है, ई कोर्सेज सेक्शन पे वो जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट करेंगे और हम एक एविडेंस उनसे मांगते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले एक सवाल किया था कि वो आर एलिजिबल। अब alumni, graduates are not eligible to apply for this program। तो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हैं या एक्टिव फैकल्टी मेंबर है, आपने अपना एम्प्लॉय कार्ड या स्टूडेंट कार्ड आपने अपलोड करना होगा और आपके एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन आपके फोकल पर्सन करेंगे बिकॉज देयर आर 250+ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, तो स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक एज ऑफ टुडे मैं आज चेक कर रहा था सुबह, वी रिसीव मोर देन 44,000 एप्लीकेशंस फॉर दिस प्रोग्राम इन द लास्ट 20 डेज। तो उनकी वेरिफिकेशन फोकल पर्सन करता है, यूनिवर्सिटी करता है। फोकल पर्सन जैसे वेरीफाई करता है, वेरिफिकेशन के बाद पोर्टल जब हमारा क्लोज होगा, एक ही दिन पे जितने भी अप्रूव्ड एप्लीकेंट्स होंगे उन सबको हम कोर्सेरा के लाइसेंस थ्रू दियर प्राइमरी जो सर्विसेज पर लॉगिन होने किया था उस पर हम प्रोवाइड कर लेते हैं। इसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम रिकमेंड सबको ये कहते हैं कि आप प्लीज़ PC या लैपटॉप यूज़ करें, मोबाइल फोन यूज़ ना करें फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। और इस बारी हमने एक रिस्ट्रिक्शन ये रखी कि आपने अपना ई सर्विसेज का प्रोफाइल लाजमी कंप्लीट करना है। डोमिसाइल, नेशनलिटी, प्रोविंस, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी अपडेटेड बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। सो ये एक बहुत एक शॉर्ट से एक सिंपल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी हू आर इंटरेस्टेड टू अप्लाई। एंड आपने यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन की बात की, तो व्हाट रोल डू दे प्ले? सो फोकल पर्सन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। मैंने आपको बोला कि वी रिसीव मोर देन 44,000 एप्लीकेशन इन द लास्ट 20 डेज। तो उनकी वेरिफिकेशन करने के लिए फोकल पर्सन हम अपॉइंट करते हैं ताकि स्मूथ कम्युनिकेशन हमारे दरमियान और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फैकल्टी के दरमियान हो। तो फोकल पर्सन का रोल एक मीडिएटर का होता है। एंड इन द लास्ट 4 to 5 years जो फोकल पर्सन का किरदार था, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा क्रेडिट उनको जाना चाहिए जो हमने एक सक्सेस इस प्रोजेक्ट की वजह से अचीव किया। तो फोकल पर्सन का रोल ये होता है जो एक मीडिएटर होता है और वो सारे एप्लीकेशंस को वेरीफाई करते हुए अवेयरनेस कैंपेन करता है विद इन यूनिवर्सिटी। और जब ये बच्चों को इंशाल्लाह ताला लाइसेंस मिल जाएगा तो वो कितने दौरान के लिए? सो बेसिकली कोर्सेरा का जो लाइसेंस होता है वो होता है 1 साल के लिए, लेकिन हम चाहते ये हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम फैकल्टी को हम ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें। तो उसके लिए हमने ये किया है कि हमने इस लाइसेंस को 6 महीनों 2 कोहोर्ट्स में डिवाइड किया है। 6 महीने के लिए कोहोर्ट 1, 6 महीने के लिए कोहोर्ट 2। तो हर एक बच्चे के साथ जब उनको लाइसेंस मिलेगा तो 6 महीनों के लिए उनके पास एक्सेस होगी टू फुल कोर्सेरा कैटलॉग, 19,000+ कोर्सेज वो विद इन 6 months एनी कोर्स दे कैन कंप्लीट।
एंड जहाँ तक इसकी रेवोकेशन पॉलिसी है तो उस बारे में यस देखिए हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत नॉन सीरियस होते हैं, तो हमने थोड़ी सी उन पर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई है। वो भी रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई है कि अगर आप कोर्सेरा का लाइसेंस ज़ाया करेंगे तो आपसे हम लाइसेंस वापस ले लेंगे। तो रिवोकेशन पॉलिसी हमारी ये है कि जब इनको लाइसेंस इंशाल्लाह मिलेगा तो विद इन 15 डेज दे हैव टू इनरोल इन एनी कोर्स। अगर वो इनरोल नहीं होंगे तो उनका लाइसेंस हम रिवोक कर देंगे। अगर वो इनरोल होंगे तो विद इन 30 डेज उन्हें कोर्स कंप्लीट करना होगा। अगर वो कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उनका लाइसेंस रिवोक नहीं होता और उसके बाद दे कैन कंटिन्यू देयर जर्नी फॉर द नेक्स्ट 5 months ऑफ कोर्सेरा लाइसेंस। अच्छा, दिस मेक्स श्योर कि जो लाइसेंस स्टूडेंट्स को इट्स बीइंग यूज्ड एंड इट्स बीइंग रिपर्पस्ड एग्जैक्टली यूटिलाइज्ड। यस तो सब आखिर में बात करना चाहूँगी, इसकी डेट्स वगैरह कुछ बताएंगे कि इसकी डेडलाइन क्या है? डेडलाइन इस प्रोजेक्ट की ये है कि हमने अप्रैल 9, 2026 को हमने ये एप्लीकेशन पोर्टल ओपन किया था। May 10th नेक्स्ट मंथ May 10 को एप्लीकेशन पोर्टल क्लोज हो जाएगा। तो जितने भी हमारे मेरे सुनने वाले स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, दे कैन अप्लाई फॉर दिस फ्री कोर्सेरा लाइसेंस टिल 10th May 2026। And what is the biggest impact that you see for this program, DLSEI? अच्छा देखिए, मैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूंगा। हमने नहीं बल्कि ग्लोबली एक रिसर्च हुआ था बैक इन 2020। उसमें ये रिसर्च हुआ था कि 100 मिलियन यूजर्स ने कितनी जल्दी एक तकनीक को अडॉप्ट किया है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की तकलीफ हुई 70 ईयर्स लगे स्टूडेंट्स 100 मिलियन यूजर्स को उसको अडॉप्ट करने के लिए। इस तरह कार को जब गाड़ी इन्वेंट हुई 60 ईयर्स लगे, जब मोबाइल फोन आया 14 साल लगे, लेकिन जब वेब आया 7 ईयर्स लगे, लेकिन जब ChatGPT आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, तो इट टेक्स लेस देन 2 months फॉर 100 मिलियन यूजर्स टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी। तो हम आजकल कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारे ऊपर हमारे जो एम्प्लॉयबिलिटी उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो उससे बचने के लिए AI को हमें सीखना पड़ेगा। और अगेन नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन फील्ड, हर एक फील्ड के अगर कोई भी स्टूडेंट फैकल्टी हो उनको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एजुकेट करना होगा अपने आप को। तो उसके लिए स्किल्स बेस्ड एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जो DLSEI फेज 3 करें तो वो बिगेस्ट इम्पैक्ट यही है कि हम उनको वो स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयबिलिटी के लिए ब्रिज बना रहे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। और इन तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम फैकल्टी मेंबर्स को इससे हद से ज़्यादा फ़ायदा ही उठाना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही कहा, खासकर CV पे डाल के लाइक दिस क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। और हम कोर्सेरा पे वन क्लिक हम एक अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को देते हैं। जैसे ही वो कोर्सेरा पे एक कोर्स कंप्लीट करते हैं, 1 क्लिक पे वो अपने लिंक्डइन पे जाके वो CV को उस सर्टिफिकेट को पब्लिश कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे मुझे एक चीज़ मैं ऐड करने की चाहूँगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लिंक्डइन को एज अ सोशल मीडिया आप यूज करें। लिंक्डइन को जिस तरह आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक यूज करते हैं, तो लिंक्डइन को एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज किया करें, क्योंकि लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयबिलिटी कि आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देखोगे, बल्कि आप बहुत कुछ लिंक्डइन से सीखोगे। तो अगर आपका किसी भी स्टूडेंट का अकाउंट नहीं है तो वो लिंक्डइन पर लाजमी जाए और लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाएं और लिंक्डइन पे अपने आप को आगे करें, ताकि वो आजकल के जो जमाने में, जो मॉडर्निज्म में जो चीजें हमारी प्रोफेशनली आ रही हैं उसको वो लर्न कर सकें। Obviously, because you have to stay connected with the people in your surroundings और आपके नेटवर्क में LinkedIn is a very good platform for that। और खासकर जब आप अपनी ये सर्टिफिकेशंस और स्किल्स और ये सब चीजें शोकेस करेंगे on LinkedIn, it's going to elevate your status in your entire network, obviously। 100%। Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing your valuable insights. DLSEI 3.0 is truly transforming education in Pakistan by making it accessible, practical and impactful. To all our listeners, apply today. The end date is 10th May 2026 and take the first step towards building your future. And with that, this is Abida Mehreen signing off. We were coming to you live from Zadist University Islamabad's Media Sciences Department's TV studio. You are watching us live on edutv.hec.gov.pk. Allah Hafiz. आप सबको खुशामदीद। Action.
लोग कहते थे ये कारोबार सिर्फ मर्दों का काम है। साथ ही चलना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों पीछे रह जाता हूँ।